آپ کے صدقات جو ہیں خیرات ہیں اسے قبول فرمائے، آپ کی ریاضت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کی برکتوں سے پاکستان کی خیر فرمائے۔ آج پوری امہ ایک نئے ماحول میں عید منا رہی ہے، اور الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد ہم نے ایک نئی کیفیت دیکھی ہے کہ آج وہ جو ہماری امہ میں تناؤ تھا وہ آج بہتری کی طرف تعلقات نے رخ اختیار کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اسلام آباد کی OIC کی میٹنگ میں ماحول کو سازگار کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے وزراء خارجہ میں ایک نئی گرم جوشی دکھائی دے رہی ہے، ان کے سفارتی تعلقات بحال ہونے چلے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ترکی اور سعودی عرب میں ایک نئی بہتری کی طرف سفر کا آغاز ہوا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سیریا اور دیگر ممالک میں جو ایک خلیج تھی وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ GCC ممالک کے اندر جو ایک تناؤ تھا اس میں بہتری آ گئی ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ بڑے عرصے بعد امہ یکجا ہو رہی ہے، اور OIC جن مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی الحمدللہ اس کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں۔ تو اس پر میں پوری امہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان نے اس میں اپنا حصہ ملایا ہے۔ دوسری چیز، SCO کا اجلاس بھارت میں ہونے چلا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اگر بلاول زرداری وہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو نہیں بھولیں گے، اور وہاں انہیں جہاں موقع ملے ان کے جو حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کے بارے میں پاکستان کا جو تاریخی موقف ہے اس موقف کو اجاگر کریں گے، ان کے حقوق کا دفاع کریں گے، حق کے خود ارادیت کا جو جذبہ ہے اس کی تجدید کریں گے، اور حریت لیڈرشپ سے ملاقات کریں گے۔ سید علی گیلانی کی وفات کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ بڑے عرصے کے بعد 10-12 سالوں کے بعد دلی جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے پاکستان کا جو تاریخی موقف ہے کشمیر پر اس کو اجاگر کریں گے۔ اور دوسری چیز، ہندوستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ برتا جا رہا ہے اس پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کریں گے، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ آج وہاں مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک نئی جنونی کیفیت نے ان کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ ہندوستان جو ایک وقت میں فخر کرتا تھا کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، آج ان میں ایک ہندوتوا سوچ غالب آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اسے اجاگر کرنے کا ایک سنہری موقع میسر آ رہا ہے، اور وہ اس کو پوری طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے میں استعمال کریں گے۔ تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو جس آئینی بحران سے دوچار کر دیا گیا ہے اس سے نکالا جائے۔ اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک موقع فراہم کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کی سیاسی قیادت بیٹھ کر اگر کوئی راستہ تلاش کر سکتی ہے تو وہ بہتر راستہ ہوگا۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا، اور میں اس موقف کو دہرا دیتا ہوں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے ڈائیلاگ سے کبھی انکار نہیں کیا تھا، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارا جو ڈائیلاگ ہے وہ آئین کے دائرے کے اندر ہو سکتا ہے، آئین سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ ود ان دا فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن
we are willing to sit with all other political parties to see Pakistan out of this constitutional crisis. मुझे खुशी है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की नशिस्त हुई थी, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत को नुमाइंदगी का मौका मिला, वहां पीडीएम की जमातें मौजूद थीं और उस 3 रुकनी बेंच के सामने वो सरे-हम तस्लीम खड़ी हो गईं, जिसके फैसले पर कल तक वो थोड़े से मोतरज़ थे। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में तश्कील शुदा बेंच को तस्लीम किया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इंशाअल्लाह 26 तारीख को नशिस्त होने चली है। मुझे इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी दी कि मैं पार्टी की नुमाइंदगी करूं सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने की। 26 तारीख को अगर नशिस्त होती है तो इंशाअल्लाह उस पर जाएंगे और बात करेंगे। हमारी ख्वाहिश ये होगी, मेरी जमात की ख्वाहिश ये है कि मुल्क इस बहरान से दो चार नहीं हो सकता। हमारी माशी हालत अभी बहुत बिगड़ चुकी है और अभी भी IMF के साथ कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो वफद गया वो भी कोई नशिस्तें नतीजा खेज साबित नहीं हुई। मामला अभी जूं का तूं है। इन हालात में एक सियासी इंतशार और एक गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी और हमें मिलकर एक रास्ता तलाश करना है। नेक नियति से हम उस रास्ते को तलाश करने के लिए बैठने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस नशिस्त को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमें यह खदशा है और मैं आज उस नशिस्त में जाने से पहले मीडिया के सामने अर्ज करना चाहूंगा, हमें यह खौफ है कि कहीं पीडीएम सरकार इस नशिस्त को ताखीर के लिए इस्तेमाल न करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, आईन बिल्कुल उसमें कोई अबहाम नहीं है, वाज़ेह है। 27 तारीख की तारीख आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो वसाइल इलेक्शन कमीशन को मिलने हैं वो मुहैया कर दिए जाएंगे। उससे हुकूमत की नीयत का एक पहला इजहार होगा कि हुकूमत इंतखाबात में आगे बढ़ने के लिए कितनी संजीदा है। और अगर वो चाहते हैं कि एक दिन बैक वक्त सारे मुल्क में इंतखाब हो, तो उसके लिए भी हमें देखना होगा कि आईनी रास्ता क्या है, कानूनी रास्ता क्या है। तहरीक इंसाफ एक ऐसा प्रपोजल लेकर जाएगी कि अगर वो नौबत आई, पहले तो है अगर कंसेंसस खुदा न खास्ता नहीं हो पाता तो 14 तारीख का फैसला, 14 मई का फैसला एक आईनी फैसला है। और अगर कोई पेशरफ्त होती है पॉलिटिकल गुफ्तशुनीद से, तो उसके लिए भी एक माहौल बनाना होगा और उसके लिए एक वन ऑफ आईनी तरमीम, हमारी राय, हमारे आईनी माहिरीन की राय के मुताबिक वन ऑफ तरमीम दरकार होगी। उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। उस 2/3 अक्सरियत के लिए तहरीक इंसाफ को असेंबली में जाकर अपना किरदार अदा करना होगा, तभी तो 2/3 अक्सरियत हासिल होगी, नहीं तो हुकूमत के पास तो नहीं है। तो देखते हैं कि हुकूमत और स्पीकर की क्या रविश होती है और कितनी फराखदिली का मुजाहरा करते हैं। इमरान खान साहब ने मुल्क की मफाद में इस मुल्क को इस कैफियत से निकालने के लिए एक बहुत बड़ा जेस्चर दिया है और तहरीक इंसाफ को कहा है कि आप बैठिए और मुल्क को गुफ्तशुनीद से, इस बहरान से निकालने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए आइन की फ्रेमवर्क के अंदर। ये चंद गुजारिशात थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। पंजाब असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब में से 4 मजबूत जो उम्मीदवार थे, जिनमें से आप एक भी थे, जिनके लिए वजारत आला का नाम मुस्तकबिल में लिया जा रहा था, उन चारों को टिकट्स नहीं दी गई। आप पार्टी के इस फैसले को किस तरह से? देखिए, इस पे मेरी इमरान खान साहब से नशिस्त हुई।
उन्होंने टिकट का मसला नहीं था, उन्होंने बड़ी महफिल में कहा था कि PP 217 आपकी नशिस्त है और आप इस पे फैसला कीजिए, लेकिन जो मुल्क की चैलेंजेस हैं और जो मुल्क की हालात में आगे देख रहा हूं, मुझे आपकी ज़रूरत मरकज़ में होगी, मुझे आपको मेरे करीब होना होगा, मेरे करीब रहना होगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मरकज़ में अपना किरदार अदा करें। तो मैंने पार्टी के विजन, इमरान खान की ख्वाहिश को फौकियत दी और अपनी ख्वाहिश को वापस कर लिया और अपने नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ किए। उन्होंने मेहरबानी फरमाकर जैन, जो वहां से सिटिंग MPA थे, जिन्होंने वहां से ज़िमनी इलेक्शन जीता था, उन्होंने टिकट इनायत फरमा दी। सर, टिकटों की तकसीम के आपके करीबी साथी जो है वो काफी नाराज है और जैन साहब के मद्दे मुकाबले इलेक्शन। कोई बात नहीं, वो हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें तो टिकट एक को मिलनी होती है, ख्वाहिशमंद ज्यादा होते हैं, कुछ मायूस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बजा तौर पर होते हैं। हमने उसके लिए एक मैकेनिज्म बना लिया है और आज इस नमाज के बाद मैं लाहौर ही रवाना हो रहा हूँ। इमरान खान साहब की सरबराही में हमारी एक नशिस्त होगी जिसमें इस किस्म के कुछ लोग जो हैं, जो अपनी नज़रसानी की अपील डालना चाहेंगे, हम उसको एंटरटेन करेंगे। जमान पार्क भी जो है, जैसे टिकटों की तकसीम का ऐलान हुआ, जमान पार्क खाली हो गया, आप फिक्र न कीजिए। कल रात जमान पार्क में आपने देखा चांद रात की बेपनाह रौनक थी और इंशाल्लाह आज भी होगी और कल भी होगी, बिल्कुल फिक्र न कीजिए। अजय शाह साहब, IMF जो है मुतमईन नहीं हो पा रहा, वजह क्या है? सियासी अदम इस्तेकाम है, इसको हैंडल किस तरह करना होगा? ये तो आप डार साहब से पूछिए, इसका बेहतर जवाब तो डार साहब दे सकते हैं। वो आए थे मुल्क को सियासी माशी बहरान से निकालने के लिए और पूरी कौम ने देखा, उन्होंने मुल्क को मजीद माशी बहरान का शिकार कर दिया। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजरल बिल है और उसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, उसको बाकायदा कानून का हिस्सा बना दिया, उस बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टे ऑर्डर भी दे चुकी है। इसके ऊपर उस बिल की कोई जिसे कहते हैं ना, फिलहाल कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी क्योंकि उसके अमल दरामद को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। 8 रुकनी बेंच ने, यानी कि फुल कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोक दिया है, वो सस्पेंड होगा और जब उनका फैसला आएगा तो हर चीज़ कि क्या उसको वो आइन के मुताबिक समझते हैं या उसको स्ट्राइक डाउन करते हैं। शाह साहब बताइएगा, 14 मई का इलेक्शन मुलतवी होता है, तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रद्द-ए-अमल का हिसाब है? पहली बात तो है कि 14 तारीख का इलेक्शन सामने है, तारीख आ चुकी है। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं होती तो 14 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। शाह जी, क्या कहेंगे सिक्योरिटी के हवाले से? PDM के तमाम जो लीडर हैं वो यही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं, जिसके लिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए फिलहाल। आप क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के हालात पाकिस्तान में बेहतर नहीं है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बताएं। हमें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो हालत जंग में भी हुए हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से PDM की सरकार पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के इमेज को इतना बिगाड़े मत कि दुनिया को ये तासुर दें कि पाकिस्तान के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। ये तो इनकी अपनी कमजोरी है, ये तो अपनी नाकामी का एतराफ कर रही हैं। वो असेंबली में मनी बिल लेके जाते हैं और मनी बिल मुस्तरद हो जाता है। ये तो उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि जो गवर्नमेंट मनी बिल पास ना करवा सके तो इखलाकन तो वो रहती ही नहीं है। पार्लिमानी रवायत तो यही है। नवाज शरीफ की कल मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, आप किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात? वो उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश की, उन्होंने मुलाकात का टाइम दिया। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कुछ उनको अच्छा सबक पढ़ाया होगा। सर, ये बताइएगा, भारत में जो है गुज़िश्ता रोज आसमानी बिजली गिरी, जिसमें जो है 5 से 6 फौजी हलाक हुए, उसका जिम्मेदार भी जो है पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। ये इसी तरह जैसे पुलवामा का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया और अब हालात बिल्कुल खुल कर सामने आ गए। उनके अपने मकबूजा कश्मीर के गवर्नर इस बात का एतराफ़ कर गए कि ये एक नाटक था, एक सियासी नाटक था जो इलेक्शंस के जीतने के लिए बीजेपी सरकार ने रचाया था। आज भी हमें ये एक किस्म का एक मंसूबा दिखाई देता है कि बिजली गिरे और उसको आप ग्रेनेड हमले से तशबीह दे दें
तो ये मुनासिब नहीं है। ये हिंदुस्तान इस किस्म की हरकतें न करे। इस किस्म की हरकतों से वो अपना नुकसान कर रहा है और हकायक छुपते नहीं है, सामने आ जाएंगे। थैंक यू। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।